26 जनवरी आने वाली है ते मेरे पंजाब विच रहन वाले भरावो ते ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बैठे पंजाबियो, एक गल याद रखो कि मसला सिख ते भारत दा हो गया है, मसला पंजाब ते हिंद दा हो गया है। याद रखो तुहानू करना की पैना है। मेरे सिख कौम दे वारसो, दिल्ली दी बिजली बंद कर दिओ बिजली बंद दिल्ली दी 25 ते 26 नू। ये वही संविधान है ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ। परिवार का जो बड़ा बेटा होता था हिंदू परिवार का, उसमें से एक खालसापन स्वीकार करता था। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी ये भारत कभी भूल नहीं सकता। 26 जनवरी आने वाली है, जेड़ा इन्हां दा मान है तिरंगा इंडिया गेट दे उत्ते लगा। आ जाओ सिंघो, करो गुरु कोल अरदास, ला दो तिरंगा 26 जनवरी नू ते चढ़ा दो तुसी उथे केसरी निशान साहब ते खालिस्तान। सिक्स फॉर जस्टिस तुहानू $2.5 लाख US देवेगी। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਚਹਿਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾ। ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜੋ, ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुखी चहल। मैं सिलिकॉन वैली से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी की बार में लिखा है
देश व बरमो एहे शुभ कर्मन ते कभू न डरूं अरसे जब ला जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, पिछले लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाली थी जो हमारे अमेरिका में, कनाडा में कुछ खालिस्तानी हैं, उनकी एक्टिविटी के बारे में। मेरे को बहुत 27,516 मैसेज आए हैं एक हफ्ते में लोगों के, कहते भी हमें पंजाबी अच्छी तरह समझ नहीं आती, भी आप हिंदी में वीडियो डालो। मैं आपके साथ हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि जो पंजाब में किसानों की एजिटेशन चल रही है, पीसफुल एजिटेशन चल रही है, दिल्ली में किसान आए हुए हैं, उनमें अमेरिका में बैठकर एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक फेक खालिस्तानी, उनको नाम लिखा हुआ है उन रखों ने, सिक्स फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उस आदमी का हमेशा से, बहुत देर से मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसकी जो भी एक्टिविटी होती है, कुछ लोग कहते हैं भी भारत के ख़िलाफ़ होती है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ उस आदमी की एक्टिविटी और उस सारे लोगों की एक्टिविटी सिखों के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसकी एक्टिविटी हमेशा सिखों और सिक्खी के प्रिंसिपलों के और फिलॉसफी के ख़िलाफ़ होती है, उलट होती है। ये आदमी कह रहा है, पहले कुछ देर पहले कह रहा था, लास्ट ईयर अगस्त 15 को बोल रहा था, कहता वहाँ जाओ दिल्ली में लाल किले पे एक झंडा चढ़ाओ खालिस्तान का, $1,00,000 दूंगा। ये ना आप गया है और ना किसी को $1,00,000 दिया है। और मैं उसको बोला था भी हम साथ चलें, आप झंडा चढ़ाओ, मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं गया। अब ये कहता है मैं $2.5 दूँ, इंडिया गेट पे एक झंडा चढ़ाओ खालिस्तान का, और वो भी दूसरे लोग चढ़ाएं। ये नहीं जाएगा काका जी, ये कहीं नहीं जाएगा। ये जहाँ अमेरिका में एयर कंडीशनों कमरे में रहकर और हवा में खालिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए जो काम करेगा कोई दूसरा काम करेगा। और इस आदमी को, जो कि सिखों की फ़िलॉसफी के बिल्कुल उल्ट है, ये आदमी कहता है अकाल तख्त पे जाओ, अरदास करवाओ, मैं आपको $5,000 दूँ। कभी ये कहता है जो कोरोना के पीड़ित थे उनको कहता है भी मैं आपको $2,500 दूँ, 3,000 दूँ, 5,000 रुपया दूँ, आप मेरे खालिस्तान की मैं एक रेफरेंडम करवा रहा हूँ, आप लोग गुलाम हो ना, आपको मैंने आज़ादी देकर दूँगा। पंजाब के लोगों को ये बदनसीब, ये इसको मैं वो बोलने वाला नहीं हूँ, जो मेरे दिल में बहुत गुस्सा है इसके लिए। ये बदतमीज़ आदमी पंजाब के सूरवीर लोगों को ये बोलता है आप नशेड़ी हो, आप गुलाम हो, मैं आपको गुलामी से आज़ादी लेकर दूंगा, लेकिन ये आप कभी भी नहीं जाएगा। और हमेशा ये हेट्रिज्म क्रिएट करता है, जो हिंदू सिखों में और बाकी कम्युनिटियों में सिखों के साथ जो रिलेशन है उसमें हमेशा ही जहर घोलता है। ये इसका एक बिजनेस बन चुका है। हमारे जहाँ भी लोगों को, बच्चों को रेडिकलाइज कर रहा है, और इसकी जो भी एक्टिविटी होती है उसके सारे का एनालाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा ये सारी सिखों के ख़िलाफ़ है। कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये मीडिया में आप ऑलरेडी देख सकते हो, मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बहुत बार ट्वीट करके बोला है, बहुत वीडियो डाली हैं कि पन्नू साहब आप पाकिस्तान जाओ, आप लाहौर में जाओ, इस्लामाबाद में जाओ, पाकिस्तान की डीप स्टेट से बात करो, जो हमारे लड़कियों की जो हालत है वहाँ पाकिस्तान में, उस पर विचार करो। झंडा जड़ाना है तो जहाँ लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह के किले पे चढ़ाओ। अगर खालिस्तान बनाना है तो लाहौर उसकी कैपिटल होनी चाहिए। अगर झंडा ही चढ़ाना है तो हरी सिंह नलुआ के
जमरौद के किले पे चढ़ाओ। और इतना ही आपको लगता है भी आप ये कर सकते हो, इंडिया में नहीं जा सकते, पाकिस्तान तो जाते रहते हो ना। पाकिस्तान में जाकर जो हमारे यहाँ लड़कियां हैं जो उठा लिया जाती हैं, जिनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, और आप लोगों में जरूरत नहीं है एक बयान भी दे दो। आप लोगों की ज़मीर मर चुकी है। आप लोगों को सिख कहलाने की सिख नहीं कहला सकते। आपकी जो एक्टिविटी है वो सिक्खी के फ़िलॉसफी के, गुरु गोबिंद सिंह की फ़िलॉसफी के, गुरु नानक देव जी की फ़िलॉसफी के बहुत उलट है। आप जाओ पाकिस्तान की हिमायत करो। चाइना में जो हो रहा है बिगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 मिलियन कंसंट्रेशन कैंप में डाले हुए हैं, उनकी लड़कियों के साथ जो उनका जेनोसाइड हो रहा है, वहां जाकर बोलो। अब आ जाओ किसानों की मूवमेंट पे। मैं इन खालिस्तानियों को फिर एक बार चेतावनी देता हूं कि भारत के लोग, पंजाब के लोग डेमोक्रेसी में रहकर अपनी जद्दोजहद, अपने कोई भी उनके इशू हैं वो अपने आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। जो किसानों का इशू है, इसमें से 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी उभर कर नज़र आ रही हैं ऑलरेडी। पंजाब के लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया, ये हमेशा पीसफुल संघर्ष रहा है, और जो भी लीडरशिप है वहाँ की किसानों की बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको चिंता है आप जैसे लोगों को पैसा देकर और उनकी जो किसानों की एजिटेशन है उनको वायलेंट करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग कहते हो 2.5 लाख पाउंड डॉलर दूंगा, आप झंडा चढ़ाओ। पन्नू साहब आप क्यों नहीं जाते? दूसरी बात, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जो फार्मर एजिटेशन है, ये सिर्फ सिखों की एजिटेशन नहीं है। इसको सिखों की एजिटेशन का नाम नहीं दे सकते हम। ये मूवमेंट शुरू हुई है पंजाब में, पंजाबी लोगों ने शुरू की है, पीसफुल मूवमेंट है, और ये सिर्फ सिखों की नहीं है, और सिखों और हिंदुओं की भी मूवमेंट उतनी है। हरियाणा से लोग बैठे हैं इस मूवमेंट में, वो हिंदू हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। जो यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से हैं, वो लोग आए हैं, वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वो हिंदू हैं। इस एजिटेशन में से एक हिंदू सिख एकता का एक प्रतीक जो नज़र आ रहा है, दुनिया देख रही है, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है जो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, और पाकिस्तान की ISI को, डीप स्टेट को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि सिखों ने हमेशा अपना खून दिया है देश के लिए। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जितनी बार हुए हैं, अगर पाकिस्तान को किसी से खतरा था, सबसे ज़्यादा डर है, आज भी उनके मन में डर है, वो सिखों से है। वो हमेशा हर एक तरीका यूज़ करेंगे सिखों को डाउन करने के लिए। और दूसरी तरफ आप जो खालिस्तानी, जहां खालिस्तान की बात करते हो अमेरिका में रहकर, क्योंकि आपने तो जाना नहीं है। अगर खालिस्तान बनाना है तो पन्नू साहब जाओ, इंडिया जाओ, ये झंडा अपने आप वहां देखो चढ़ा के, आपको पता चल जाएगा। और पंजाब में जाकर एक गांव में एक सरपंच की इलेक्शन भी जीत कर दिखा दो, आपको पता है भी आपकी फॉलोइंग क्या है। आपको मालूम है जानबूझकर सिखों को बदनाम कर रहे हो। अमेरिका, कनाडा में 100 साल लगा है हमें, हमारी इज्जत, हमारी पगड़ी की रिस्पेक्ट बढ़ रही है दुनिया भर में, लेकिन आप जैसे बदतमीज लोग हैं, जो आप जैसे बदतमीज हैं, सिख की बात करते हो, देखने में भी सिख नहीं लगते आप।
और जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो आप उसको गुरुद्वारा में भी पीटते हो। आप एक तरफ शांति की बात करते हो, पीसफुल मूवमेंट की बात करते हो, सबसे वायलेंट आदमी, सबसे वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी है। मनजीत सिंह जी को कैलिफोर्निया की जुबा सिटी के गुरुद्वारा के अंदर आप लोगों ने पीटा। मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे, जेन्युइन क्वेश्चन पूछे, मेरे को गालियां सैन फ्रांसिस्को कौंसलेट जनरल के सामने आप लोगों ने दी। जहां भी जाते हो सिखों की कोई मूवमेंट होती है उसमें को हमेशा हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाब के लोग, पंजाब का किसान ये चीज आपको कभी माफ नहीं करेगा जिंदगी पर। आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। सारा दिन सुबह से शाम तक आप लोगों की जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी होती है, हिंदू ने ये कर दिया, हिंदू ने ये कर दिया, हिंदू ने ऐसे कर दिया। दुर्फिटे मुंह आप जैसे लोगों से शर्म आती है आपकी एक्टिविटी की वजह से। आपको मालूम होना चाहिए भारत में हिंदुओं की पॉपुलेशन 80% से ज़्यादा है और सिखों की पॉपुलेशन 2% से भी कम है। और हमारा रिस्पेक्ट है सिखों और हिंदुओं के साथ। इसमें से खटास मत डालिए, इसमें से जहर मत डालिए। ये हमारा रिलेशन है। हमारे गुरुओं की फिलॉसफी देखो। गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया, उनकी कुर्बानी देखो। गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया। 3 लोग जो दूसरे साथ थे, भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी, उनकी पैदाइश हिंदू धर्म में हुई थी। कभी चांदनी चौक जाओ और साथ ही आपका जो किला है ना, रेड फोर्ट है, लाल किला बोलते हो, किसी को $1,00,000 देने की बजाय ना पहले वहां झंडा चढ़ाओ, फिर जहां आकर देखो हमारे गुरुओं ने हिंदू सिख एकता के लिए क्या नहीं किया। गुरु तेग बहादुर की शहीदी की सेलिब्रेशन हर एक हिंदू के घर में होती है, मंदिरों में होती है, गुरुद्वारे में होती है। आप जैसे बदतमीज लोग हैं और हिंदू सिखों में फर्क पा रहे हैं। मैं 1.5 महीना भारत में रहकर आया हूं। दिसंबर 30 को कैलिफोर्निया वापस आया हूं। वहां जाकर देखो, अपनी हिस्ट्री के बारे में देखो पहले, क्योंकि जिस आदमी को अपनी हिस्ट्री के बारे नहीं मालूम वो किसी को क्या बताएगा। वो तो सिर्फ नफरत ही पैदा कर सकता है। सरहंद में जाओ, फतेहगढ़ साहब जाओ, मेरी वीडियो देख लो। छोटे साहबजादों ने शहादत दी थी, इस्लाम कबूल नहीं किया, अपनी शहादत दी थी। आनंदपुर साहब, केशगढ़ साहब जाकर देखो, वो भी मेरी वीडियो देख लेना लास्ट मंथ की। खालसा पंथ की जो फाउंडेशन है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजा जिस दिन, जो 5 प्यारे थे, 5 के 5 वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। वो कोई भी इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियनिटी में नहीं पैदा हुआ, वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। गुरु साहब के फॉलोअर बने थे, अपने शीश दिए, ऑफर किए। वो 5 प्यारे बने गुरु गोबिंद सिंह जी के, और 5 के 5 अलग अलग स्टेटों से। कोई हस्तिनापुर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहे हैं, कोई कर्नाटका से आ रहे हैं, कोई उड़ीसा से आ रहे हैं, और अलग अलग जातियों से आए थे और अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। वो गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा बने थे, 5 प्यारे पहले। उनमें से 3 प्यारों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहबजादों के साथ शहादत दी थी, चमकौर साहब की गढ़ी में।
उस जंग में शहादत दी थी उन लोगों ने। और वो 5 के 5 पैदा हुए थे हिंदू धर्म में। जो पहले अपनी हिस्ट्री थोड़ी रिसर्च कर लो। और वही 5 लोगों ने अमर शाह के पहले 5 प्यारे बने। उन्हीं 5 प्यारों की वजह से बाद में गुरु गोविंद राय ने अमर शाह का, उस दिन से गुरु गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह बने थे। जिस दिन गुरु गोविंद सिंह का गोविंद राय का जन्म होता है बिहार में, पटना में, उस दिन उनके पिता गुरु तेग बहादुर बंगाल में थे। और उनका गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिल्ली में होता है। किसकी वजह से होता है? औरंगजेब की वजह से। अगर कोई मुद्दा उठाना होता ना तो औरंगजेब के खिलाफ उठाओ। आज भी अनफॉर्चुनेटली भारत में औरंगजेब के नाम के सिटीज भी का भी नाम है, इंस्टीट्यूशन का भी नाम है, सड़कों का भी नाम है। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। पिछली कुछ सरकारों ने जानबूझकर साजिश के दिन सिखों की हिस्ट्री का नैरेटिव बहुत गलत पेश किया है। हमारे गुरुओं ने शहादत, जो हिंदू सिख एकता का प्रतीक था, उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया लोगों को। मैं चाहता हूं पता चले लोगों को हमारा रिलेशनशिप क्या है, उनको पता चले गुरु तेग बहादुर जी की शहादत किसकी वजह से हुई थी। उनको पता चले जब बंदा बहादुर की मुलाकात होती है गुरु तेग बहादुर जी के साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, वो बंदा बहादुर माधव राव था, एक हिंदू था, उसको खालसा बनाया। बंदा से माधव राव से, बंदा बरागी से बंदा सिंह बहादुर बनाया। खालसा पंथ की स्थापना की उस आदमी ने। आपको शर्म आनी चाहिए पहले हिंदुओं के बारे में बोलना। जो भी मुंह में आता है तो बोलते रहते हो। ये हमारी पगड़ी है, इसको दाग नहीं लगने देंगे। बहुत खून डुला है, बहुत कुर्बानियां की हैं सिखों ने, और हम आप जैसे खालिस्तानी, जो फेक खालिस्तानी हैं, इनको ठेका नहीं देंगे सिक्खी का। जो भी आता है, जहां कोई भी बच्चा आता है, अमेरिका में आता है, कनाडा में आता है, जहां को जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन लोगों को आप रेडिकलाइज कर रहे हो। जो हमारी लड़कियों के साथ यूके में, इंग्लैंड में, लंदन में हो रहा है, वो कौन कर रहे हैं? जो मीडिया में जाकर देखो, जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग चल रही है, उसके बारे में इन खालिस्तानियों को कोई चिंता नहीं है। आप लोगों की जो हिम्मत नहीं थी। लास्ट ईयर अफगानिस्तान में सिखों का कत्लेआम हुआ गुरुद्वारा के अंदर, 26 सिखों का। आप लोगों की कोशिश थी वो पाकिस्तान में जाएं, ताकि जो बलि का बकरा वहां बनाए उनको, बाद में उनकी कन्वर्जन होए, वो उसमें इस्लाम को कबूल करवाया जाए। हमारी लड़कियों को आप लोगों की कोशिश थी, आपकी लीडरशिप की कोशिश थी, वो पाकिस्तान में जाएं। मैं धन्यवाद करता हूं भारत की गवर्नमेंट का, उस फैमिली को इस ट्रेजेडी डे में, इस दुख की घड़ी में उनको एक्सेप्ट किया, उनको वहां सेटल होने में हेल्प की। इन द मीन टाइम को जो अमेरिका या कनाडा या किसी और देश में जा सकते हैं, सेफ्टी दी उनको।
और आप लोगों ने क्या किया? आज तक दिखा दो एक भी जिंदगी में आज तक सिखों के लिए या सिखी के लिए एक भी अच्छा काम किया हो। अब कहते हो जहां जाकर $2.5 लाख दूंगा मैं आपको, इंडिया गेट पे झंडा चढ़ा दो। शर्म आनी चाहिए आपको। इंडिया गेट की हिस्ट्री पता होना चाहिए क्या है, किन किन सूरबीरों के वहां नाम लिखे हुए हैं, किन किन ने शहादत दी है। और ये 26 जनवरी है, ये किसी के बाप का दिन नहीं है। जो उन सूरबीरों ने जिनने देश के लिए भी खून डोला है वहां उनकी शहादत है वो। जो इंडिया गेट है 26 जनवरी की पहले हिस्ट्री पढ़ लो। बाबा साहेब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के बारे में पढ़ो। 26 जनवरी को ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसे बयान देना, ये बाबा साहेब का भी बहुत बड़ा नरादर है। उनके जो फॉलोअर हैं उनकी भी आप बेइज्जती करते हो। मेरे ट्वीट देख लो, लास्ट ईयर भी मैंने ट्वीट बहुत किए थे। आप जैसे बेशर्म लोगों को मैंने टारगेट किया था। आप भारत के झंडे जला रहे थे। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, जो अपनी मां का नहीं होता ना, वो किसी का नहीं होता। भारत मां तुम्हारी मां थी, तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें एजुकेशन दी, तुम पौन पानी दिया, उसके साथ भी आपने दगा की। जो अपनी मां का नहीं होता ना, वो किसी का नहीं हो सकता। अमेरिका में आगे अब चाइना के साथ वार थी। पन्नू साहब ने सबसे पहले चाइनी प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था, और ये बदतमीज उस समय भूल गया था कि जो 20 जो जवान शहीद हुए थे, उनमें से 4 जो जवान थे वो पंजाब के रहने वाले थे, वो सिख थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग भारत के नहीं सके हो सके, ये कभी अमेरिका भी सके नहीं होंगे, ये कभी कनाडा के भी सके नहीं होंगे। जो भी बदतमीजी की एक लिमिट होती है, हद होती है। पहले 1984 पे आप लोगों ने चादर बिछाकर पैसा इकट्ठा किया, अपनी दुकानदारी शुरू की। आज बता दो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है। उस सरकार का धन्यवाद करो। इतने सालों के बाद 84 के कुछ लोगों को, जो कांग्रेस के गुंडे लोग थे, उनको जेल में डाला है। अगर बाकी भी और भी ज़्यादा जस्टिस डिले हो रही है, उसमें ये फेक खालिस्तानी बाहर बैठे हैं, वो भी उतने जिम्मेवार हैं। आपने पैसा इकट्ठा किया, उस समय भी कहता था कि मैं $1 मिलियन दूंगा जो सज्जन कुमार को अंदर करवाएगा। वो सज्जन कुमार तो अंदर है, $1 मिलियन कहाँ है? ये सिख कौम से ऐसे मजाक, ऐसी एक्सप्लॉयटेशन करना सिखी की फिलॉसफी के खिलाफ है। और पन्नू साहब, दुनिया वॉच कर रही है। 99% लोग जो हमारे मेहनती लोग हैं, जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत कर हमारी इज्जत दुनिया भर में बनाई है, हर एक फील्ड में, आप जैसे लोग कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ लोगों के इमोशन को एक्सप्लॉइट किया है। अगर सिखों को किसी से खतरा है, आप जैसे झूठे खालिस्तानी हैं, उनसे खतरा है। सिखों को किसी से खतरा नहीं हो सकता। सिर्फ आप जैसे लोग जो बुक्कों का सब सांप बोलते हैं ना,
आप जैसे लोगों से है। मैं उम्मीद करता हूं जो एजिटेशन चल रही है फार्मर की, मैं फार्मर यूनियन की लीडरशिप को भी बेनती करता हूं, आप इनसे चौकन्ने रहिए। ये लोग बाहर बैठकर जो बयान देते हैं, आपकी मूवमेंट है उसको वायलेंट करने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं आपकी मूवमेंट को हाईजैक करने की। ये माओं के पुत मरवाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये कभी भारत नहीं आएंगे, ये हवा में खालिस्तान बनाएंगे। इनकी कोई कहीं फॉलोइंग नहीं है। ये गुंडे लोग हैं, जब इनको कोई क्वेश्चन भी पूछता है उनको उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं, इनकी हिस्ट्री बता रही है। मैं लीडरशिप को भी बेनती करता हूं, किसानों की, इनसे चौकन्ने रहिए। और दूसरा, कुछ मीडिया सेक्शन भी है भारत में जो कहता है भी किसान खालिस्तानी हैं। किसान कभी खालिस्तानी नहीं हो सकते। पार्टी के छोटे बड़े नेता जो हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं, नक्सलाइट कहते हैं। मैं किसी भी सूरत में, लोगों ने कहा, मैं अपने किसी भी सूरत में अपने सिख भाई को खालिस्तानी कहा जाना बर्दाश्त जो आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ना, मैं सचमुच उनको अपना बड़ा भाई मैं मानता हूं। तो गलत किया, जिन्होंने कहा गलत किया ना। सीमा हिंदू परिवारों में ही जो एक बड़ा बेटा होता था वो जो है खालसा पंथ स्वीकार करता था। और देश की संस्कृति को बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी, ये भारत कभी भूल नहीं सकता है। पंजाब का किसान, जब भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, जो भारत के फूड बॉल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाब के किसान की थी। पंजाब का किसान कभी भी भारत के खिलाफ नहीं हो सकता। और मोदी जी से, अमित शाह जी से बेनती है कि इस मूवमेंट का, किसानों की मूवमेंट का कोई पीसफुल रेजोल्यूशन लेकर आए, क्योंकि ये कौम, सिख कौम, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी, गुरु साहब से लेकर हमेशा भारत से बहुत लॉयल रही है और आगे भी रहेगी। इनकी कंट्रीब्यूशन, जवान की कंट्रीब्यूशन और किसान की कंट्रीब्यूशन, ये एक मिसाल है। मेरे को उम्मीद है इसका कोई अच्छा फैसला जल्दी आ जाए। अदरवाइज जो बाहर के लोग हैं, एक जो आपका गवांडी देश है, मुल्क पाकिस्तान बैठा हुआ है, जो उनकी डीप स्टेट है, हमेशा खालिस्तान के नाम पे इन लोगों ने पंजाब को और सिखों को, स्पेशली पंजाब को बर्बाद करके रख दिया। और ये हम कभी भी नहीं, इनकी जो कोशिशें हैं उनको पूरा होने देंगे कि पंजाब में काले दौर दोबारा फिर से वापस आए। हमारे नौजवान बहुत समझदार हैं, वो कोई निशेड़ी नहीं है जैसे ये पन्नू एंड जो लगौड़ तुड़ी फिरती है, जहां ये बदतमीज लोग कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं हिंदू भाईचारे से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं अगर ऐसे इन जैसे बदतमीज लोगों के कभी ये नहीं सोचना भी सिख हिंदुओं के बारे में गलत बोलते हैं, ना कभी बोले और ना ही बोलेंगे। आप हमारे बरा हो, हमारी यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के लोग, जो डीप स्टेट है या जो खालिस्तानी है, इनको हमारी जो यूनिटी है, हिंदू सिखों की एकता है, वही परेशान कर रही है। और मैं आखिर में सभी लोगों से फिर एक बार बेनती करता हूं
दी खालसा टुडे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में कुछ और वीडियो डालने वाले हैं, डिटेल वीडियो डालेंगे। इनकी क्या औकात है और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, गलत कंट्रीब्यूशन क्या है, उनको हम एक्सप्लॉइट करना वो भी सिखों का है, फ़र्ज बनता है। हर एक सिख का फ़र्ज बनता है इन लोगों को चैलेंज करना। इनको चैलेंज भी करना किसी और का नहीं है, ये सिखों का, ये अपना, इनका सिखों का इशू है और सिख करेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।